गले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। Hello and Assalamu alaikum everyone and welcome to Telenor's Free Hits by Wali Sports. मैं हूँ आपकी host Mehak Khokar and we have reached the 16th match of the HBL PSL 10. आज match होगा लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान at Gaddafi Stadium Lahore. Both the teams will be looking to redeem themselves here today as they did lose their previous respective matches. We saw that Lahore Qalandars lost pretty badly to Peshawar Zalmi and Karachi Kings. Multan Sultans. It is actually Multan Sultans that is playing today. Multan Sultans lost their match against Islamabad United. So both the teams, Multan Sultans and Lahore Qalandars, will really be looking to get a win under their belt. And to talk about all things cricket and all things PSL, of course, we have with us in the studio our cricket legend and cricket icon, Ahmed Shahzad. Ahmed, thank you again for being here with us. And our two content creators in the show today are, it's Anzal, who is a content creator, but he also makes videos on cricket. Assalamu alaikum, Anzal. Thank you so much for being here with us. You're welcome. And our other guest is an athlete. She's a female athlete. वो एक बैडमिंटन की नेशनल चैंपियन भी है. साथ में वो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करती हैं स्पोर्ट्स में. वो खुद ही आपको बता देंगी थोड़ी देर में all the things that she does because there's countless things that she does. It is Laiba Maqsood. Laiba, thank you so much for being here with us. Thank you for having me. Okay, now first of all, let's talk a little bit briefly about yesterday's match. कल का जो मैच था वो था क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान. We saw that even though Quetta Gladiators got, they had a very rough start, but they really managed to turn things around in their favor and clinch, a win in a match that went till the very last ball. अगर हम match summary भी देखें तो इधर हमें नजर आ रहा है कि Quetta Gladiators scored 142 all out, and then Karachi Kings was not able to chase that down. The Karachi Kings losing that match just by 5 runs. Karachi Kings found themselves one more time in a very close contested nail-biting of a match, but unfortunately they were on the losing end of the stick this time. Ahmed, कल के मैच की बात करें तो I just want to get right into it. Very unfortunate for Karachi Kings कि even though they got off to a good start, लेकिन चीज़ें उनकी फेवर में नहीं गई. अब एक प्लेयर जो मेरे दिमाग में स्टैंड आउट करता है उनकी टीम से, इट इज शान मसूद. सबसे पहले तो जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने बैट के साथ दे स्टार्टेड गेटिंग देयर ग्रूव ऑन, तो शान मसूद ड्रॉप्ड अ कैच, और फिर उसके बाद जब बैटिंग भी वो करने आए तो उस वक्त बेसिकली कराची किंग्स को 66 रन्स चाहिए थे ऑफ 68 बॉल्स टू विन. सो बेसिकली दे जस्ट नीडेड 1 रन पर बॉल, और उन्होंने इतने बॉल्स वहां पे जाया किए कि जब वो आउट हुए तो तब कराची किंग्स को 47 रन्स चाहिए थे ऑफ 39 बॉल्स. तो आप क्या कहेंगे ओवरऑल अबाउट कराची किंग्स की जो बैटिंग थी, या क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी कि वो जीत ना सके? नहीं, अब बॉलिंग में तो बैटिंग तो पूरा शो था दोनों की तरफ से. बॉलिंग दोनों टीमों ने अच्छी की है. आप देखें कि हसन अली ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दिया, अर्ली विकेट्स लेके दी, उनके फॉरनर्स को आउट किया. फिर नबी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है. अब इस मैच के अंदर देखेंगे, फिर आप उसको देखेंगे मोहम्मद आमिर को अर्ली स्टार्ट दिया, क्योंकि इस तरह के टोटल में आप विकेट लेके ही जीतते हैं 140 पे. तो डेविड वार्नर को एक दफा फिर उन्होंने आउट किया और वो जल्दी आउट हो गए. उसके बाद वो साइफर्ड और विंस ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई. ऐसा लग रहा था सीधा सीधा मैच है, लेकिन मैं यही देख के हैरान होता हूँ कि किस तरह हम मैनेज कर रहे हैं ये मैचेस हारना. कुछ चीजें होती हैं कि बियॉन्ड आपकी समझ ही चली जाती हैं. मतलब जितनी मर्जी आपने क्रिकेट खेली होती है तो समझ से बाहर है. जिस तरह लाहौर का मैच था, समझ से बाहर था कि क्यों आसिफ अली ओपनर आया, वजह क्या थी पीछे, कि किस मूड में आया वह लाहौर के अंदर जीतने आया था. कि फिर इसी तरह आप इनकी बैटिंग देख लें कि शान मसूद जिस तरह खेले, एज यू सेड, कोई तुक ही नहीं बनता था वहां पे. पता नहीं क्या इनिंग खेले हैं. चौथे नंबर पे उनका T20 में उनका ओपनर काम नहीं है, और फिर अब उन्हें चौथे पे भेज रहे हैं. विनिंग स्ट्रीक से आप आ रहे हैं, कराची में आप जीते हुए हैं, तो बैटिंग में तो आपको इशू चल ही नहीं रहा था सच कोई. तो क्या वजह बनी? किसी ने कह दिया था डालना था, या हैदर अजहर साहब ने ये क्या कॉम्बिनेशन किया, कुछ समझ से नहीं आया. और इसकी वजह से आपको देख लो, आप मैच इस तरह के हो जाते हैं. एक ही इनिंग होती है जो आपको जो है ना लेट डाउन कर देती है पूरी टीम को, और ये इनिंग आपके सामने शान मसूद थी. अब लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम को बैटर्स पैराडाइज कहा जाता है, लेकिन हमने जितने भी मैचेस सो फार उधर देखे हैं तो वो लो स्कोरिंग टोटल्स बने हैं.
तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? यानी कि हमें पता है कि आपने ऑलरेडी कह दिया है कि जिस तरह उनके बैटर्स आए, जिस तरह कैप्टन्स ने डिसीजंस किए हैं, दे हैव बीन वेरी पुअर, बट डू यू थिंक दैट्स द ओनली रीजन? मैं क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे है, बल्लेबाजों की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नीचे हैं, चाहे वो आपके फॉरेनर्स हैं चाहे आपके लोकल प्लेयर्स हैं। आपके पास आया ही कोई नहीं खेलने। अगर यहाँ पे तगड़े प्लेयर इनफॉर्म बैट्समैन खेल रहे होते, आप देखते यही लाहौर के पिच पे जो है ना 250 भी पहुंचना था, क्योंकि हम जहाँ से क्रिकेट देख रहे हैं बड़े जबरदस्त विकेट लग रहे हैं। तो यही तो बोल रहे हैं कि ना आपके पास बॉलर अच्छे ना लोकल अच्छे, 140 पे आउट होके खुद ही बयानियां बना देते हैं जी पिच इस तरह का था, और अगले भी आउट हो जाते हैं और फिर उनकी स्टैंप लग जाती है। हमें तो एक बॉल टर्न होता हुआ एक बॉल सीम होता हुआ नहीं नजर आया। हर प्लेयर अपनी बुरी शॉट सिलेक्शन या कोई सिचुएशन इस तरह की क्रिएट कर लेते हैं, दे हैड टू गो बिग, वो करते हुए आउट हो रहे हैं। अदरवाइज हमें नहीं समझ आ रही है कि चक्कर क्या है क्या नहीं है। आई थिंक इस मैच पे डेफिनेटली हमारी गेम बनती है ब्लेम गेम। तो आप बताएं कि अब अपने कह तो दिए कि फिर शॉर्ट सिलेक्शन थी, लेकिन वैसे ओवरऑल आप किस चीज को ब्लेम करेंगे कराची किंग्स की कल जो लॉस हुई है? यू नो व्हाट विल यू ब्लेम? कैप्टनसी में एरर था, टीम सिलेक्शन गलत थी, बैटिंग थी, या क्या था? The person who brought Shan Masood in the 11 and sent him in number 4, whoever it is, lot of shots कप्तान और हैदर अजहर लेते हैं। कप्तान का तो इतना अमल दखल होगा नहीं, हैदर अजहर जो है मुझे लगता है कि वो बहुत सारी चीजें करते हैं। सो जो भी शान मसूद को कल इनकी प्लेइंग 11 में लेके आया था, he was responsible for everything. Okay, और अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली उनके लिए आई थिंक it was a must win as well, और बहुत ही अच्छी जीत इन द एंड हो गई उनके लिए, क्योंकि वो इतना बुरा खेल रहे थे शुरू में, and they really turned things around towards the end of that first innings. फिर second innings में उनकी bowling बहुत तगड़ी थी. So what, you know, positive things can Quetta Gladiators take from yesterday's win and take that forward with them? इतनी तगड़ी बॉलिंग नहीं थी। आमिर ने अच्छा स्टार्ट दिया, आमिर एक्सपीरियंस बॉलर है, पहले मैच में भी उसने अच्छी बॉलिंग की, बाबर वगैरह को आउट किया, फिर एक आधा मैच उनको ऑफ किया, लेकिन आज फिर से आकर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू नो मोहम्मद आमिर। उसके बाद वसीम जूनियर ने डिसेंट बॉलिंग की है। यू नो उनके फिगर्स अगर आप देखेंगे इब्रार वगैरह के बहुत अच्छे हैं, लेकिन महक फिगर्स तब अच्छे लगते हैं जब आगे से बल्लेबाज उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ठीक है, अगर मैं आपको गंदा ही खेली जा रहा हूँ, रिक्वायरमेंट कुछ और है और मैं कुछ और खेल रहा हूँ, और मेरे पास उतने स्किल है ही नहीं कि मैं जो यू नो आपकी जो जिस तरह की भी कंडीशन है या बॉलिंग है उसको इनोवेट कर सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं, तो स्किल लेवल की कमी है। इसीलिए आपको बॉलर्स जो हैं वो उनके फिगर्स ऐसे लग रहे हैं यार, बॉलिंग वेरी वेल। और फिर पिच पे भी बात होती है कि हाँ ये पिच कैसा था यार, अच्छा 140 किया, वो भी 140 पे और भाई पिच वगैरह में कुछ भी नहीं है, बॉलिंग भी वही बॉलिंग है जिसको 250 भी होते हैं। कैलिबर ऑफ क्रिकेट इज डाउन, इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा। वो जो डाइयां लगती हुई, खून निकलते हुए, कॉलर खुले हुए, लड़ाइयां होते हैं, इनकी बेचारों की लड़ाइयां भी हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन लड़ी जा रहा है आपस में। कोई लड़ाई देखिए, वाहिद लड़ाइयां जो मैं इस दफा देख रहा हूँ कि जो जबरदस्ती हो रही है, बस ये आ रही है देख के, एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लड़ाइयां समझ से बाहर है। क्या ये क्लिप बनाने हो? नहीं, ऐसी लड़ाइयां नहीं होती हैं। आपको तो दिल दुगड़े से और अपने टक्कर के लोगों से लड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को पकड़ के जो है ना उनको सुनाई जाए और ये करिए। अच्छा अंजर, आप थोड़ा सा बताएं, आप ऑब्वियसली क्रिकेट का कंटेंट बनाते हैं, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से? सो टेक्निकली मैं जिस मैच की बात करी, मैं वो कल मैच देखने में गया, आई वाज लाइव देयर इन काफी स्टेडियम, और मैं परसों वाला मैच भी देखने गया। अनफॉर्चूनेट फॉर यू। आई फील फॉर यू। एंड टेक्निकली अहमद भाई, जो पहले एक ओवर हुआ ना, जब आसिफ अली वॉक इन हुआ, तो क्राउड देख रहा था। अच्छा, आप बहुत कलंदर्स वाले मैच में गया। अच्छा, दोनों क्राउड स्टन था कि एक जगह फखर जमान है, जिस ऑब्वियसली फैंस लव फखर जमान, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट आसिफ अली को तो हमेशा हमने लोड अराउंड द ऑर्डर खेलते हुए देखा है। ये लेके, और आपको पता है कि उनकी थोड़ी लिमिटेशंस है। आई एम नॉट अ क्रिकेटर, मैं अहमद भाई पे नहीं लिमिटेशन है, सब कुछ पता है, लेकिन आपको पता है कि उनका जो एक रेंज ऑफ हिटिंग है वो मिड ऑफ मिड विकेट के नए बॉल पे सारी जिंदगी खेला ही नहीं। स्विंग होते हुए बॉल पे इतना आसान होता खेलना, तो हर कोई खेल लेता। तो वो आए हैं, उनका एक शॉट लगे और बिल्कुल पेशावर ने प्लान किया हुआ था, और जैसे ही वो बस आगे हुए हैं, खाली वो नहीं हुआ, इससे यार ये हुआ जिस तरह वो खेला, जो बीट भी हो रहा था ना, एक्सपोज ही हो गए पूरे। बिल्कुल। उसके बाद डैरेल मिचेल आए हैं, और डैरेल मिचेल ऑब्वियसली एक स्टार प्लेयर हैं, खेला है, बट उन्होंने एक शॉट खेला और वो मुझे समझ नहीं, ऑब्वियसली ऑफ, बिल्कुल बहुत ऑफ। या तो उनके अंदर वो स्पिरिट नहीं था पीएसएल खेलने का, या फिर वो ये एक्साइटेड नहीं थे। ये स्पिरिट बनते होते हैं विद इन द ड्रेसिंग रूम, यू क्रिएट दैट स्पिरिट, और फिर जब आप स्पिरिट बनाते हैं उसके बाद आप फॉरेनर्स से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जान मारे। जब अक्सर हमारा मैं क्या कहूँ, जिस तरह शो भी कभी कभी डल चले जाते हैं ना, वो स्पिरिट ना हो, जैसे स्पिरिट आ जाए कि नहीं यार हमने उठाना है,
तो वो चीज़ बेहतर हो जाती परफॉर्मेंस ही है, हाँ। बेहतर हो जाती है। आप हर किसी को देखते हैं कि हाँ यार अपना अपना सब कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो वो ट्राई और स्पिरिट कहीं ना कहीं, सॉरी यू कैरी ऑन, मिसिंग थी लाहौर कलंदर में। Yeah. So technically I was like कि crowd के अंदर ही first 6 overs में ही crowd was बहुत silent कि अच्छा अब कि क्या हो match क्या देखना रहा है। है। Because मैं PSL को बहुत, मैं जब भी कोई PSL पाकिस्तान आया मैं हमेशा मैच देखने गया, and I used to feel कि लाहौर की आवाम बहुत सपोर्ट करती PSL को, बहुत जेन्युइनली क्रिकेट एंड टेक्निकली दे आर वेरी हैप्पी, वो शोर मचाते हैं, वो क्राउड एंजॉय करना चाहते हैं। इस बार तो क्राउड ऐसा था कि एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि एज अ कंट्री वी डोंट रियली हैव मच अपॉर्चुनिटीज टू एंजॉय एज सिविलियंस और सिटीजंस, तो लोग वहाँ फॉर्मेलिटी के cricket ही तौर पे जाके आए हुए देखते थे। हैं। और वहाँ पे आई सॉ कि जैसे ही फॉर एग्जांपल क्राउड बाय द वे जा रहा था, यानी कि फुल था, स्टेडियम बिल्कुल फुल था, एंड टुवर्ड्स आई द हैव अ मिडल ऑफ वीडियो द इन माय मैच मोबाइल क्राउड चला गया वेयर था। जब 10 ओवर पूरे हुए हैं पेशावर के, वी वर लाइक चलो यार हाँ, निकलो, स्टेडियम क्या खाली करना हो है। गया एंड आई था। वाज सो सैड कि इतना अच्छा हमारा एक ब्रांड था। PSL 5 में बेन डंक की जो इनिंग्स हुई थी, अहमद भाई खेलते थे, इवन कि जो वहाब रियाज वाला मसला हुआ था, तो एक हम कैसे होता कि यार ये कुछ हो रहा है मैच में, यार मजा आता था। अहमद जरा वो थोड़ा सा बताएंगे व्यूअर्स को, थोड़ा रिफ्रेश कराएं कि हुआ क्या था। ओए कुछ भी नहीं हुआ था, वहाब रियाज के साथ थोड़ा बहुत वो हो गया था, लेकिन वो लेकिन शोर उससे बहुत अच्छा था यार। उससे जो PSL है ना, वो पहला साल था, बस वो PSL अक्रॉस द बॉर्डर चले गए थे। सही बात है। उस पे जो है ना PSL, मुझे बहुत कॉल्स भी आई, इवन दो नेबरिंग कंट्री से भी सारे वो उस पे डिस्कस कर रहे थे। तो जब कोई चीज ऐसी हो जाती है जिसपे पूरी दुनिया डिस्कस करने लग जाए, Eyeballs आ जाती है। तो फिर जो है ना उस पे आईबॉल्स आते हैं और जो लोग लैंड करते हैं। सो इसलिए वो बुरा नहीं मनाया गया, क्योंकि वो कहते कोई करने फिर वेरी बात ये गुड, viewership आ गई है। अब वही तो कह रहा हूँ, अब लोग कोशिश करते हैं लेकिन उनको बेचारों पे हंसी आ जाती है, वो खुद चिड़ी से और पंगे किसे लेते हैं और चिड़ी से। अरे यार कोई ही कर नहीं तो अगर आप पहले जो एडिशंस होते थे PSL के, वो अब इस एडिशन से कंपेयर करें तो आपको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं? डिफरेंस मुझे नजर आता है कि पहली बात जो अहमद भाई ने ऑलरेडी जिक्र किया कि क्रिकेट का जो मयार है, लाइक स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इज रियली लो। आई रिमेंबर PSL 5 वाज, मैं समझता हूं, वाज द पीक ऑफ PSL। ठीक है, लाइक आई यूज्ड टू सी कि फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग एट ऑल, लेकिन जो कुछ खवातीन होती थी नॉट जनरली इंटरेस्टेड इनटू क्रिकेट, बट फिर भी आती थी स्टेडियम में दे वर देखने लाइक के लिए, राइवलरीज के हाँ। नो, लाइक अहमद भाई अगर कोयटा से खेल रहे हैं तो हम कोयटा के साथ, अगर आमिर कराची से हैं तो हम कराची के ही साथ हैं। तो वो राइवलरीज यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, टिकट्स ब्लैक में टिकट्स जारी होती थी यार, मैं तो आपको बताऊं। ठीक है, एंड नाउ तो अब मैं देख रहा हूँ कि क्लोजेस खाली पड़े हुए थे, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अब क्या हो रहा है? क्या हो तो सकता है। आपने एक बात अच्छी की, वो जो सिटी बेस्ड राइवलरी थी सोशल मीडिया पे यू कुड सी, लेकिन इस दफा डेड। इस दफा तो कोई rivalry नहीं कजन्स है। लड़ पड़ते थे मेरे इस्लामाबाद वाले। आप भी देखती हैं क्रिकेट? मैं क्रिकेट देखती हूँ, पर इस बार मुझे ऑनेस्टली आई वुड सेकंड बोथ ऑफ देम। इस बार वो पैशन नहीं दिख नजर रहा, आया। वो कम्पिटिटिवनेस जो थी। आपने मैचेस देखे हैं सो फार PSL आज के? का हम लोग जा रहे हैं, आई वांटेड टू गो बट देन आई केम हियर, सो माय अच्छा। मॉम इज गोइंग टू गो विद माय डैड, that's सो आई आस्क्ड देम। बट वही बात है, पहले होता था हमेशा मीम्स बन रही हैं, लाहौर वाले मुल्तान वालों को रोस्ट कर रहे हैं इधर उधर, बट बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट हुई भी थी उसकी। इस बार हाँ। काफी माहौल डेड है। अब तो ये हाल हो गया कि जो मीम्स अगर नहीं बन रही हो तो उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स खुद मीम बना के डालते हैं कि कुछ मसला हो जाए। कुछ तो आगे जाएगा। ये तब होता है Spices जब डालें। आप अपने प्लेयर्स का ख्याल नहीं रखते ना, जिन्होंने उठाई होती है, जो आपके वैल्यूएबल प्लेयर्स होते हैं, जब आप उनको यूज करके और फेंक देते हैं ना, फिर वो आपको जो है ना वक्त भी तो है वो हॉन्ट करता है। ठीक, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि किसी तरह कोई हाइप क्रिएट हो, जिस तरह ये कह रहा है कि और तो दुनिया कुछ कर नहीं, ये खुद ही मीमें बना के जो है ना फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान में अलमिया यही हो गया, प्लेयर भी यही कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं खुद। ठीक है, लोगों को जो है ना सीड कर रहे हैं चीजों को, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी चीजों को, लोगों का परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं, लोगों को हेलुसिनेट करके रखा है पिछले 5 साल से। प्लेयर्स हैव बीन डूइंग इट, और अब PSL पे भी वो हालात आ गए कि उन खुद कोई कंट्रोवर्सी चाह रहे, कोई कह रहे कुछ हो जाए तो चल जाए PSL। लाइवा, आपने पिछले 2 मैचेस देखे थे टीवी पे? कल वाला मैंने देखा था, एंड वाला बहुत क्लोज था। हाँ, काफी It was close गया था exciting in the towards end, the but I end. think the whole match was pretty boring. I अच्छा, would still वो say. होता ही है, एक्साइटिंग इसलिए रहता है, दोनों टीमें बुरा भी खेले ना तो मैच एक्साइटिंग हो जाता है। चला जाता है। हम देखने बैठे हैं, जिस तरह हम देखने बैठे हैं अच्छा क्रिकेट मैच, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग, क्वालिटी बैटिंग, क्वालिटी स्पिन बॉलिंग, क्वालिटी फील्डिंग, क्वालिटी कैप्टनसी, क्वालिटी प्लेयर्स, वो दोनों कंपीट कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर। दे गेट पेड हेवीली, राइट? तो वो एक अच्छे मैच को थ्रिलिंग देखने का मजा अलग से आता है, फिर उस तरह के प्लेयर्स भी हो। ये डिफरेंट क्रिकेट हो रही है, ये क्लोज तो हो रहे हैं लेकिन गंदा खेल के क्लोज हो रहे यही बात हैं। है। इससे कोई बच्चा कुछ नहीं सीख सकता, आपकी यूथ कुछ नहीं सीख सकती। तो आपके जब रोल मॉडल जो हैं, जो आपके कप्तान है रिजवान साहब, जब वो आज की दौर में भी निकाला, उनको किसी और वजह से गया है,
वो 37 बॉलों पे 36 करेंगे, तो फिर शान मसूद तो करेगा ना 17 बॉलों पे 14, सही बात। वो तो करेगा ना फिर, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन मिल जाता है। मुझे क्यूरियोसिटी हमेशा यही रहती है कि क्या रीजन है, इवन यू एज अ क्रिकेटर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई आर प्लेयर्स सो अनफिट नाउ? ये क्या वजह है? There is no accountability. We've been telling this. accountability जब आपकी देखो, आप महक भी है, अगर महक को मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, महक रोज आ रही है या मुझे कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, कि मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, चाहे मैं परफॉर्मेंस यहाँ अच्छी दे रहा हूँ, एक दिन आता हूँ मैं अपने मूड में आता हूँ, दूसरे दिन महक अपने मूड में आती है, वो सिंक हो ही नहीं रही है, परफॉर्म नहीं आ रहा है, कोई तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कुछ अगर कहेगा नहीं तो हम आएंगे रोज मेकअप कराएंगे बैठ अच्छा जो जाएंगे। भी है बस बैठ के बस तो when there is accountability, ठीक है, हमें लोग कहेंगे एक्सक्यूज मी, कल आपके यहाँ पे तो आपकी नींद नहीं पूरी लग रही थी, यू नो यू लुक एट दिस, आपका आज ये नहीं है, व्हाट आर यू वेयरिंग, आज एनर्जी नहीं थी, तो ऑटोमेटिकली वी विल ट्राई टू। तो पाकिस्तान टीम के पिछले 5 सालों से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, चंद प्लेयर्स थे, 2-3 प्लेयर पे सारा कुछ छोड़ा हुआ था और उन्होंने 8 के टोले के साथ ग्रुपिंग करके अकाउंटेबिलिटी पहले कौन ले रहा था जिसने एकदम से छोड़ दी? कप्तान स्टार्ट करते थे, कप्तान फिर पीसीबी, आपका जो सीनियर प्लेयर्स होते थे, ठीक है, अब आपके जो पिछले 5 साल थे वही सीनियर वही जूनियर, उनके ऊपर सीनियर ही कोई नहीं था। आप मुझे बताया ना, नहीं मिसबाह हक को छोड़े, हर कप्तान के साथ सीनियर प्लेयर करते थे। जब आपके कप्तान ने ग्रुपिंग बनाई हो और लोगों को सोशल मीडिया पे लुसिनेट कर रहा हो और ये बयानियां हो कि बस हमने ही खेलना और कोई ना आए, यू नो टीम जबान जरे आम ये बात हो कि यार हमने खेलना और किसी, तो आपको आने नहीं देना, हम फ्रेंड्स हैं 8, तो फिर वो उनको भी पता चल जाएगा कि हमने तो टीम से ठीक निकलना है, नहीं और है। फिर वो 8 का ग्रुप बना के पीसीबी को ब्लैकमेल करते रहे हैं, अपने पैसे बढ़वाए हैं, अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की चीजें बढ़ाई हैं और बहुत चीजें हैं जो कि नहीं अच्छा लगता मैं यहाँ बैठ के बताऊं, बस जितनी जितनी थोड़ी थोड़ी सीडिंग करनी थी हमने भी अपना काम किया है, और अब आप सबको या लोगों को या पीसीबी भी अब सबको पता है तब्दीलियां आ रही हैं, होपफुली हम इन चीजों से निकले और यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, बिलीव करना स्टार्ट करें, ताकि वो पाकिस्तान को एक नया रोशन पाकिस्तान क्रिकेट की फ्रेटर्निटी को आगे लेके जाए। बिल्कुल। अच्छा, बिफोर वी आर गोना गो ऑन अ ब्रेक शॉर्टली, लेकिन बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, लाइव आप थोड़ा सा हमें बता दें कि आप बैडमिंटन के अलावा और क्या चीजें करती हैं? ओके, सो ये मिसकंसेप्शन जो लोगों में है कि पढ़ाई नहीं हो सकती खेलने के साथ, तो मैं नेशनल टीम का भी हिस्सा हूँ। बिफोर प्लेइंग बैडमिंटन आई वाज अ मल्टी स्पोर्ट एथलीट। मैंने एएफएल फुटी का वर्ल्ड कप खेला हुआ इन ऑस्ट्रेलिया एज द यंगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। मैंने एशियन चैंपियनशिप कराटे में ब्रॉन्ज जीता था इन 8th ग्रेड। उसके बाद आई प्लेड पाकिस्तान की जो पहले कबड्डी टीम बनी थी, आई वाज पार्ट ऑफ इट इन द जूनियर स्क्वाड एंड द सीनियर स्क्वाड। सो आई वाज पार्ट ऑफ द फर्स्ट टीम, मेल फीमेल टीम ही पहली बार ब्रॉन्ज जीत के लाई थी इन ईरान, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट। उसके बाद फिर मुझे यही सबने कहा था बहुत कश्तियों में पाँव है, एक चूज करके उसको और वो pursue करो। honestly wasn't something good जो मैंने डिसाइड किया था, which I feel personally, because पाकिस्तान में तो स्कोप था ही नहीं। मैं बैडमिंटन enjoy कर रही थी, डिफरेंट चीजें खेल रही थी, जहाँ पे टूर लगा चले जाते थे। यहाँ पे लड़कियों में सिर्फ फिटनेस ही आपका मेन कंपोनेंट होता है, अगर आप वो पूरा कर लें तो आप कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं। एक्चुअली हमारे शो पे कुछ दिन पहले भी एक और बैडमिंटन की नेशनल चैंपियन आई थी, बिल्कुल, और वो यही कह रही थी कि हमारे टूर्नामेंट्स ही नहीं होते, नेशनल टूर्नामेंट्स 2 होते हैं, और इसलिए यू नो मैं थोड़ा सा डिसहार्टन अब हो गई हूँ। तो I mean that's just the sad reality of generally all sports in Pakistan apart from cricket। लेकिन अब जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं शो पे, पता नहीं क्या होगा। अब हम बात करते हैं आज के मैच की। Obviously today's match is between लाहौर कलंदर्स and मुल्तान सुल्तान्स, दोनों टीम्स जो आज एक जीत हासिल करना चाहेंगी, especially after their performances in their previous matches। हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि मुल्तान सुल्तान्स is sinking right down at the bottom of the table, और लाहौर कलंदर्स जिस तरह पिछले मैच में, पहला जो उनका मैच था उनके होम ग्राउंड में, जिस तरह वो खेले थे, आई थिंक कि जितने भी इनके फैंस आज इनको देखने आएंगे, दे विल बी होपिंग टू सी अनदर यू नो अ होल डिफरेंट बॉल गेम बाय लाहौर कलंदर्स। अब चले देखते हैं पॉइंट्स टेबल को। आज अभी Points table में, of course, Islamabad United is shining right at the top, sitting there pretty without any worries. फिर Karachi Kings अभी भी number 2 है table पे. But if you look at the teams that are playing today, Lahore Qalandars at number 3. आज उनका 6th match है and Multan Sultans का भी 6th match है. And I think Multan Sultans will definitely be really desperately wanting to win this match today. Ahmed, थोड़ा सा बता दें how important is today's match for Multan Sultans more than anything? It's a do and die situation for them, and they have just got themselves to blame, nobody else. और वो पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश तो पहले से कर रहे हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर लाहौर कलंदर के अगेंस्ट भी आज डिलीवर ना हो पाया, लर्न हुआ, तो फिर अगले 4 मई में अगर लर्न नहीं भी हुआ तो फिर लर्न ही समझे। नहीं, लेकिन अब वो एक नए वेन्यू पे आ रहे हैं, उन्होंने अपने मैचेस खेल ली अपने होम ग्राउंड में,
तो आज what will they have to do overall differently? देखिए डिपेंड करता है कि लाहौर कलंदर पे कि लाहौर कलंदर आज इतना किस गंदा मूड में खेल- आया है। वो लाहौर कलंदर की ऑन पेपर अगर टीम देखेंगे दे हैव गुड प्लेयर्स विद देम, लेकिन उन पे अपने मूड है। अब जिस तरह कल शाहीन सिकंदर रजा से ऊपर आ गया, आसिफ अली को फिर से ओपन ये कराएंगे पता नहीं। अब देखे ना सिकंदर से ऊपर शाहीन आ गए, ठीक है यार आए, लेकिन ऐसे ना करें। वो भी हाँ ये सिकंदर रजा एक फॉरेनर प्लेयर है, उसको ज्यादा बोल रहे खेलना हैं भी सारी आता है, चीजें बैटिंग करनी। तो इस तरह के डिसीजन कुछ समझ नहीं आ रहे। फिर उनका यही है कि भाई टीम अच्छी है, अगर तो मूड में आए तो उन्होंने मुल्तान सुल्तान को फड़का देना है, लेकिन अगर मूड में ना आए फिर कोई एक्सपेरिमेंट, कोई फलाना बनना चाहे, कोई बहुत बड़ा कप्तान बनना चाहे, कोई मैनेजमेंट से साइंसदान बनना चाहे, इस तरह के डिसीजन लेके यही होता है ना कि मैं साइंसदान बन जाऊं। तो अगर वो बनने जाएंगे तो फिर वही होएगा। अगर नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे अच्छे प्लान्स के साथ, अच्छे रिदम के साथ अंदर आएंगे एज ए टीम बन के, जो हालात हैं इस टाइम मुल्तान को फड़का देंगे। तो आपको क्या लगता है कि मुल्तान को अपने बेस्ट प्लेइंग 11 को किस तरह आज खिलाना चाहिए, किस ऑर्डर में? अगर आप मुल्तान के से कोच होते तो आप किस तरह, या कैप्टन होते तो आप किस तरह आज अपनी टीम को जितवाते? मैं क्या करता जो उनके पास प्लेयर्स हैं किस तरह जितवाते? देखिए यहाँ बैठ के बातें करना बड़ा मेरे लिए आसान है कि किस तरह जितवाते, रियलिटी डिफरेंट होती है, आपको जोन के अंदर घुसना पड़ता है। यहाँ बैठ के मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, ठीक है। हाँ, जो नजर आता है वो खिलवाना बता। किसको चाहिए? कुछ गलतियां इन्होंने की प्लेयर्स को रिलीज करके, फिर प्लेइंग 11 के अंदर भी देखें आप, तैयब ताहिर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस के अंदर एक प्लेयर है और जो T20 का जेन्युइन प्लेयर है, आपने तो जीतना है, उसको कॉन्फिडेंस दें। तो फिर आप जब इस तरह के सियानपन करते हैं तो आपके वो आगे आते हैं। क्रिकेट ऐसी चीज है, आज नहीं तो कल चीजें आपके सामने लेके आती हैं। और फिर उसामा मीर की जो यूटिलाइजेशन है वो उस तरह यूटिलाइज भी नहीं हो रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहे थे। जब हार रहे होते हैं ना तो डिफरेंट चीजें ट्राई हो रही होती है, इंसान कहता है नहीं ये नहीं चल रहा, ये का, उसमें और गलतियां होती रहती हैं। तो आप जब तक स्टेबिलिटी, आप अपनी बेस्ट 11 उतारते हैं फ्रॉम द डे वन, ठीक है, और उसको बैक करते हैं। अगर 4 मैच हो गए आपके नहीं हुआ, फिर आप चेंजिंग करते हुए समझ आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 2 मैच आपको दे दिए, 2 आपको दे दिए, 2 एक्सपेरिमेंट मोड में बिल्कुल स्टेबिलिटी। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग से आप आज क्या डिफरेंटली एक्सपेक्ट करना चाहेंगे? पता नहीं अब होता है कि नहीं, मैं लेकिन रिजवान को जो है देखना चाहूंगा कि वो एज ए लीडर सेट करें टोन को अप फ्रंट। वो 36 बॉलों पे 37 ना करें और वो Strike दूसरों को ना आउट करवाएं। मैं कहने का मकसद है कि मैं आराम से खेलता रहूं और मैंने महक को कहा तू बस जा और मारी जा, कि मैं बस इधर क्रीज ठीक पे है। हूंगा। फिर महक आउट हो जाएगी, फिर उस्मान खान आ जाएगा, फिर मैं उस्मान को कहूंगा मारी जा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई आ जाएगा, वो आएगा, वो मारी जा। तो मैं जो हूं ना यूं खेलता रहूंगा। ये कब तक करोगे मेरे भाई? ये तो 1980 वाले प्लेयर भी अगर आज T20 खेल रहे होते तो वो भी चेंज करने की कोशिश करते चीजों को। और ग्रोथ ही ऐसे आपने ना की, आप नहीं कर रहे हो, यही वजह। लेकिन लीडर जो होता है उसको फ्रंट से लीड करना ही पड़ेगा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के अंदर बोले, फिर ही आप टीम से एक्सपेक्ट करते हैं। जब लीडर 37 बॉलों पे 36 करेगा, और एक होता है, देखिए मैं बार बार ऑडियंस को कंफर्म करना चाहता हूँ, एक होता है आप ट्राई कर रहे हो, आपका दिन नहीं है, लग नहीं रही, समझ आती है। हम भी यहाँ बैठ के क्रिकेट खेले, बहुत ऐसे दिन आए कि हम ट्राई करते थे, नहीं हो रहे थे। लेकिन एक होता है कि ट्राई नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, मैं खेलता रहूं और मेरा अच्छा दे, तो फिर यही होता है। इनका ये ख्याल था कि मैं कोई बात नहीं, 35 बॉलों पे 36 भी हो गया, 2 चौके मारूंगा तो 40 बॉलों पे 50 करके फिर से मैं यूं करूंगा और यूं करूंगा। कहने का मकसद है जब वो नहीं होता तो फिर टीम इस तरह सफर करती है जो कर रही है। तो अब आपने तैयब ताहिर की बात की, तो आपको लगता है कि उनको ला सकते हैं टीम में कामरान गुलाम की जगह? भाई वो कामरान गुलाम की जगह भी क्यों लाना है, और किसी की जगह ले आओ। ये सारे अच्छे प्लेयर हैं, वो खिलाना चाहिए। अब तो बैलेंस तो रखना है ना अपने स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के बीच में। हाँ, तो 2 बैट्समैन आपको चाहिए नहीं मिडिल के अंदर। आप टॉप ऑर्डर के अंदर एक प्लेयर ले आए, एक कामरान। लेकिन आप ठीक कह रही हैं, अगर देखें तैयब आएगा तो कामरान चला जाएगा, कामरान आएगा तो तैयब। तो आपस में यंगस्टर्स के दरमियान ही कंपटीशन लगा दिया कि खुद नहीं जाएंगे, बस खुद नहीं हमने कहीं पे भी जाना। बस ये यंगस्टर एक जाए, दूसरा है, हम वहीं रहेंगे। तो ये बड़ा प्लानिंग के साथ ये सारी चीजें होती हैं। आपको लगता है कि इसके ये बस एक ऑर्डिनरी सी चीज है, इन्होंने गलती कर दी। एक होती है गलती, एक होता है पूरा प्लान करना। आपको मैं ये बता दूं कि जो भी चीजें पाकिस्तान टीम के अंदर या फ्रेंचाइज के अंदर होती हैं, पूरे प्लान से सारी चीजें होती हैं। एक एक चीज को नोट किया जाता है और उसके बाद जो है ना अंदर उतरा जाता है कि इसको चांस देंगे तो ये कल मेरी जगह पे आ जाएगा, इसको तो खिलाना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए, इसको नहीं खिलाना, उसको नहीं खिलाना, ये उसका है, ये उसने क्या। अब जिस तरह शान मसूद आए टीम में, कहानी शान मसूद जो टीम में आए थे, मुझे बता दें क्यों आए थे? हार रहे थे वो,
कराची किंग हार रहा था नहीं यार, मुझे कराची पता है। किंग्स फिर भी बेहतर खेल रहा था पिछले ठीक है, सीजन। मुझे वही ना, सिर्फ तो ये शान बताएं मसूद हार रहा खेल था, 3 मैच 5 में जीत गया, आखिरी मैच जो खेला वो भी जीत गया। हाँ। शान मसूद कैसे चौथे नंबर पे टीम के और अंदर आ उन्होंने गए कुछ थे किया भी नहीं करा। अगर कर भी जाते तो कैसे आए आप लाए हैं, उन्हें? क्यों आए हैं, कोई प्लानिंग होती, थॉट प्रोसेस होता उन्होंने है। सोचा होगा इन्हें भी आज खिला देते क्योंकि हम अभी कंफर्टेबल हैं नंबर 2 तो बस ये इन्होंने खैर ऐसे नहीं सोचा होगा, जरूर जो है ना ऊपर से चीजें होती हैं। दूसरा ये है कि ये इस तरह की कंफर्टेबल जब चीजें हो और आप चीजों को ग्रांटेड लेने लग जाएं, फिर आप और उसके बाद फिर एंड में जो है ना आप सिर्फ यूं ही रहते हैं, ओए काश मैं ये कर लेता। कि हम बाय 5 रन्स ना हारते, इतना क्लोज मैच जो हम जीत रहे थे। अच्छा, बात करें लाहौर कलंदर्स की, तो खुशा परेरा को वो ओपनिंग क्यों नहीं कराते? वो श्रीलंका की तरफ से ओपनर आते हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा है, तो वो उनको क्यों, लाहौर कलंदर्स उनको क्यों नहीं ओपनिंग कराते? देखिए लाहौर कलंदर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्लास है, विजन है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ विजन है। ये अगर वो ये सारी चीजें जो आप बैठ के कह रही हैं वो करने लग गए तो उन्हें कलंदर कौन कहेगा? जबजा भी है ना, जबजा, फिर वो तो आगे बहुत जबजा है। एक और बयान सुन रहा लाहौरी हूँ स्टाइल में मैं जज्बा एक है। और बयान सुन रहा हूँ, वो तो ये भी क्रेडिट लेने लग गए हैं कि हैरी ब्रूक हमारी वजह से इंग्लैंड का कप्तान बन गया। खुदा, तो आप मैं तो क्या बोल खुदा का खौफ भी हैरी नहीं ब्रूक को खाते। कुछ हो रहा होगा, ये बातें सुन के वो कह रहा होगा ये क्या हो रहा है। हंसते हैं ये लोग, ओ भाई हमें हमारे साथ है, कॉलीग्स है ना, हमें सब पढ़ते हैं, हंसते हैं आगे से। वो आगे पता है क्या क्या? मजबूरी है कि आपके घर जो खेलने आता है आपके अगेंस्ट बात नहीं कर सकता, हाँ, ठीक है, क्योंकि exactly। उनके वो जो वो कभी भी कोई भी, मैं भी एज एन एथलीट कोई डोर बंद नहीं करता, सही बात है। कोई डोर बंद नहीं करना है, लेकिन हमारे साथ ड्रेसिंग रूमों में इधर फोन व्हाट्सएपों पे हंसते ही हैं आप पे, इस तरह की हरकतों पे। वो कहते हैं जी ये ओए ओ खुदा का वास्ता है आप लोगों को यार, कि हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड का कैप्टन है वो वो कहाँ हमारी आ बेटी रहा है? हमारी लाहौर कलंदर का क्लेम है ये कि हमने उसको ये किया, टीम डेविड को भी हमने कर दिया। भाई आपको प्लेयर चाहिए था, प्लेयर आ गया, उसने परफॉर्मेंस की, वो खेल रहा है, ठीक। खाली आपकी आपके वजह से पास तो नहीं थोड़ी बना। परफॉर्मेंस किया, हर जगह उन्होंने जाके बेसिकली परफॉर्मेंस कर रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अपनी तरफ से शुरू कर दिए। इन्होंने तो बहुत कुछ शुरू किया हुआ था, अगर इनको थोड़े से अपने बयान थोड़े संभाल लेने चाहिए, नहीं तो बहुत सारी चीजें जो आपने शुरू की हैं वो सारी बाहर आ जाएंगी। ओके, अब थोड़ा सा अंजल आप हमें बताएं, क्योंकि आप ऑब्वियसली एविड क्रिकेट वॉचर हैं, कि आज का मैच जो होगा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का, दोनों टीम्स को क्या करना चाहिए कि वो अच्छी क्रिकेट खेल सकें? फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि जो अहमद भाई ने बात बोली कि मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड अगर मैं देखूं तो उसमें नाम मुझे बहुत अच्छे नजर आते हैं। हाँ, दे आर नॉट बैड प्लेयर्स एट ऑल, yeah, they have a good ठीक है, lineup, बट yeah. समहाउ वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। मेरी जो एक लॉजिक जो मुझे समझ आती हुई आती कि पिछले जो पीएसएल हो रहे थे, दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब एंड देन दे वर गोइंग टू कराची, और कराची में जाके कुछ टीमों की परफॉर्मेंस काफी डिप होती थी। मुल्तान ने जो अपनी प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन थी वो पंजाब मुल्तान में खेल के, मुल्तान में ही वो लाहौर अपने दिल्ली में मैचेस खेल के जीतते थे, अपनी हाँ। साइड पे कर मुल्तान ली में थी। सो टेक्निकली आई बिलीव इज, आई थिंक मुल्तान के लिए लाहौर का स्टेडियम हैज बीन More suitable? लकी जाम फॉर देम, इवन दो लाहौर के लिए भी। बट जो अहमद भाई ने बात की कि डिपेंड करता है कि लाहौर का किस मूड से आता है। आई फील अगर आपने 9 को चांस दिया तो जो इमर्जिंग प्लेयर है आहिस्ता आहिस्ता, अगर पावर प्ले में अगर आपके 2-3 शॉट्स लग भी रहे हो, अगर आप आउट भी हो रहे हैं, आई थिंक इट्स फाइन, यू हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ नीचे, आप खेल सकते हैं। अब T20 वैसा गेम तो डाल नहीं, जैसे अहमद भाई ने बोला कि आप 36 बॉलों पे 37 रन या 36 बॉलों पे नहीं कर सकते। अगर आपका शॉट नहीं लग रहा, इट्स बेटर दैट यू थ्रो अवे योर विकेट एंड गिव द अदर पर्सन अ चांस। So they say हाँ, scoring 0 on 1 ball is better than scoring 50 on 40 balls now. एग्जैक्टली। जो इधर होता है कि आप जी। 15 रन स्कोर कर रहे होते हैं ऑफ ऑफ आई डोंट नो 20 बॉल्स 30 बॉल्स, इतना बॉल्स आप जाया कर और रहे मेरा हो। आखिरी कंसर्न ये है कि अगर तैयब ताहिर जैसा प्लेयर आपकी नेशनल टीम में है, व्हाई इज आप ही नॉट उसको प्लेइंग इन utilize मुल्तान क्यों नहीं सुल्तान? कर रहे? Forget that, bro. सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम का कप्तान नॉट प्लेइंग, तो लाइक ये कौन, कोई कोई ये मुझे ये नहीं कहीं और हो सकता है, design है ये एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, कहीं और हो ये सकता है, ये सबको पता है ये क्यों नहीं खेल रहा, कौन अंडरमाइन कर रहा है, कौन लोग हैं, क्या कुछ किया पीसी में। इज इट बिकॉज़ वो कैप्टन बन गए हैं तो जी इसलिए उनको, बिल्कुल, और उन्होंने आके नहीं सबको खेला। निकाल दिया। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। यानी कि इस तरह की जब बातें आपको मिलती हैं सुनने के लिए, तो फिर आपका दिल ही थोड़ा बिल्कुल सिंक कर जाता है। आप ही बताएं कि बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है ये भी सुन के कि Yeah. हर स्पोर्ट में ही ऐसे हम देखते हैं क्रिकेट टीवी पे, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं एवरीथिंग इज अबाउट क्रिकेट इन आवर कंट्री, और लोग उसको इतना कर्स कर रहे होते हैं, बाकी बाकी स्पोर्ट्स वाले एथलीट्स क्योंकि इमोशंस उनके जज्बे अटैच्ड होते हैं क्रिकेट के आई साथ। फील एटलीस्ट पीएसएल से हमें इंटरनेशनली हमारा बाकी कंट्रीज के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, प्रमोट हो रहा है मुल्क। और जो बाकी बाय द वे जो स्पोर्ट्स हैं वो भी अब कह रही थी कि हम पीएसएल की तरह भी अपनी लीग शुरू करते हैं, तो बाकी स्पोर्ट्स भी इंकरेज हो रही थी। for the country that हाँ, something is बिल्कुल, happening at least, but then you hear such things and and it's so demoralizing for other players. Oh, क्या कहते हैं, इनका ये हालत हमारा फिर तो बहुत ही बुरा है। लेकिन बताए अब जिस तरह
इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स फेडरेशन है पाकिस्तान में जिनके अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स भी बिल्कुल भी नहीं थे और पीसीबी से ही इंस्पायर होके उन्होंने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स बनाए। जिस तरह वॉलीबॉल हो गई, वॉलीबॉल भी काफी ऊंची गई थी एकदम से पाकिस्तान में पिछले साल। हाँ, उनकी इंटरनेशनल यानी कि कंट्रीज भी आके खेल रहे थे पाकिस्तान में ही। फिर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल ने इवन दो दे हैड दैट 8-year ban अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके बाद दे हैड द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। आपके पास सऊदी जैसी टीम्स आ रही हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए और वुमेन्स की फुटबॉल भी काफी ऊंचा क्रिकेट से। बट क्रिकेट से इन सारी स्पोर्ट्स ने इंस्पिरेशन ली है कि हम क्रिकेट की तरह बनना चाहते हैं। वो एक होता था आपका एक स्टेपिंग स्टोन कि हम क्रिकेट की तरह एक स्पोर्ट को बनाना चाहते हैं। अगर कोई और स्पोर्ट बात भी करती है तो कहते हैं कि वी वांट टू बी नंबर द सेकंड मोस्ट फेमस स्पोर्ट इन द कंट्री आफ्टर क्रिकेट। लेकिन अब आप इतने ज्यादा फॉल्ट टाइम सुनते हैं क्रिकेट के बारे में तो फिर आगे जाके बाकी स्पोर्ट्स कौन सी स्पोर्ट को आगे जाके फॉलो करें? किस स्पोर्ट से इंस्पिरेशन लें? कुछ आप मुझे क्या बताओ, मैं मुझे क्या बताओ आप क्रिकेटर है ना, इसलिए क्रिकेट के बारे में आपको लोग पीपल आर इंस्पायर्ड बाय यू। मुझसे आप क्रिकेट की पूछते हैं, मैं आपको क्रिकेट के जो ऑनेस्टली लगता है कि शायद मैं ये बातें ना कर रहा होता अगर पाकिस्तान की क्रिकेट नंबर 9 की टीम ना होती तो। सही बात, ठीक है, मैं क्यों करता ये बातें? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों सबको ये पता लग जाए और लोग होश के नाखुन लें और जो चीजें कर रहे हैं ये बंद करें और मेरिट पे चीजें करें, क्योंकि इससे बहुत लोगों के घर चल रहे हैं, रिस्क चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और आपने उसका भी हॉकी वाला हाल कर दिया। आप जरा लोगों की स्टेटमेंट्स देखें जो हम जैसे लोग हैं, उन्होंने कह दिया है कि हो गया हॉकी वाला हाल। प्लेयर कौन है आपके पास? जबरदस्ती यहाँ बैठ के यंगस्टर्स को हम कह रहे हैं वेल डन वेल डन वेल डन, बिकॉज वो एक होप है। क्योंकि होप इसलिए है क्योंकि जो पुराने वाले हैं वो ऐसी चीजों में पड़ गए हैं कि आप उन पे अब रिलाय नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस को छोड़ें, परफॉर्मेंस के अलावा वो ऐसी चीजें करते हैं कि आप अगर उनके हाथ में चीजें देंगे आप कहीं भी नहीं जा सकते। आप ट्राई करके फिर देख लें। अच्छा, क्विकली आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपने कहा था ना कि आप पिछले 2 मैचेस आपने स्टेडियम में देखे, तो आप पहला देख के बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं हो, आपने फिर भी कहा कि मैं अगले पे चलता हूं। मैंने पहले से खरीदी थी, so I had to go. ओके, सो that's the real reason. ओके, आई सी दैट। हम जल्दी से अपने ऑफ कोर्स अहमद शहजाद से और अपने गेस्ट से पूछते हैं कि आज की क्या प्रेडिक्शंस उन्हें लग रही हैं। अहमद ऑन दैट हॉट सीट, हमें हमेशा बाय द वे उनकी एक प्रेडिक्शन सही हो गई है। वी नो पेशावर ज़ल्मी उस दिन जीत गया था। अहमद, आज क्या लगता है कि आपको कौन सी टीम जीतेगी? आई एम श्योर मुश्किल है कहना इन दोनों टीम्स के बारे में इस वक्त, लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे लगता है टेलेनोर जीत जाएगा। टेलेनोर फॉर द विन, टेलेनोर फॉर द विन। नहीं, सीरियसली कौन सी टीम जीतेगी? लाहौर कलंदर मूड में आएगा तो लाहौर कलंदर के बहुत चांसेस है मुल्तान सुल्तान को ये मैच मारने के, बिकॉज मुल्तान सुल्तान का ना तो कॉम्बिनेशन बन पाया अभी तक और ना ही उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस है, ना ही कोई प्लेयर फॉर्म के अंदर है। तो इस डाउन एंड अंडर है, जब इस तरह की सिचुएशन में हो तो आप एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश करते हैं और जब आप बेसिक से हट के एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश करते हैं वहां भी गलतियां करते हैं। सो उनके बड़े चांस हैं कि लाहौर कलंदर ने मार दे, लेकिन डिपेंड है करना चल रहे हैं वो क्या कर रहे आए तो उसी हिसाब से पहले 10 दिया करो गर्म किया है। वैसे प्रेडिक्शन से क्या कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर के मुताबिक खेलेंगे ना। वैसे टेक्स्ट बुक पे उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि लगता है कि मुल्तान सुल्तान हार जाएगा, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे फीलिंग आ रही है कि आज मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा। आई हैव अ फीलिंग। आपको क्या लगता है? मुझे बिल्कुल लगता है कि अगर आज मुल्तान सुल्तान जीत जाता है तो टूर्नामेंट की डायनामिक्स थोड़े मजे की हो जाएंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ही उन्होंने क्वालीफाई नहीं करना। आई रिमेंबर 2020 का पीएसएल था वेयर लाहौर वाज इन द सेम पोजीशन और वो यहां से सीधा प्लेऑफ्स गए थे। आज इवन तो बीइंग लाहौर आई रियली वांट सपोर्ट कि आज जीत जाए लाहौर, लेकिन अगर मुल्तान जीत जाए तो ना वो ये फील नहीं होगा कि ओके यार इस टीम ने कंपटीशन ही नहीं किया, ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो। लेकिन या स्टिल Lahore Colours has to win. I'm supporting Lahore today. Oh really? Yeah, I'm supporting Lahore, but I feel like Multan can win. कि Multan can win it. वो तो कि अब you have nothing to lose from here. अब क्या करना है? क्या वो क्या ही करेंगे? अब बस खिला दे तो खिलाते हैं। That's true, and like you said कि वो गद्दाफी स्टेडियम में फिर भी in the past they have played better than Karachi. So let's see. अच्छा लाइबाना, you tell us कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे ऐसा लगता है लाहौर के पास एक टैलेंट है जो वो ओवर कॉन्फिडेंस में खेलता है तो हम हार जाते हैं। तो मुझे भी थोड़ी देरी फीलिंग आ रही है मे बी मुल्तान कैन विन, क्योंकि उनके पास डू एंड डाई वाली सिचुएशन बन गई है। द बॉटम बिल्कुल ही, और जख्मी शेर ज्यादा हाथ मारता है तो हो सकता है। जख्मी शेर, आई लाइक दैट। जख्मी शेर बिल्कुल सही कहा आपने। और 16th मैच HPL PSL 10 का लाहौर ने जीत लिया है। पहला मैच अपने होम ग्राउंड गद्दाफी स्टेडियम में उन्होंने जीत लिया है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। It's quite a shame for Multan Sultans because now
they have completely sunk down that table. But great news for Lahore Qalandars, as they were able to really pull through in this match in that second innings and were able to get the victory over Multan Sultans. Ahmed, बात करें तो this is absolutely great news कि Lahore Qalandars ने 180 degree का U-turn लिया है if you compare it to their last match. और लगता है इन्होंने काफी कुछ सीख भी लिया था, think tank उनका वापस आया है, and they performed pretty well today. मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो जब वो पहली इनिंग्स में बैटिंग करने आए तो हमने वही चीज़ रिजवान से फिर से देखी, और कामरान गुलाम को देखें जो उनके साथ ही पार्टनरशिप में थे, उन्होंने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, और रिजवान जो थे उनकी कंप्लीट ऑपोजिट थे. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए, हमने बात की थी कि कुछ प्लेयर्स हैं आपके वो स्टबन हो गए, दे डोंट वांट टू लर्न, दे थिंक कि जो भी उनका तरीका है वही राइट वे है, विच इज़ रॉन्ग. इसी वजह से इनको आप पाकिस्तान की, खाली मुल्तान सुल्तान के जो हालात हैं वो तो आप छोड़ ही दें, लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान ने बड़ा सफ़र किया है. पाकिस्तान बहुत हारा है इस अप्रोच की वजह से, क्योंकि उनकी गेम ही नहीं थी. इनको ओपनर बना दिया गया, तो ओपनर थे ही नहीं. इनको तो मजबूरी में इन्होंने बाहर हो जाना था. तो मिसबाउल हक साहब थे, वो कहीं उनके डिपार्टमेंट में भी खेलते हैं सुई गैस से, वो कोच थे उस टाइम पे. उन्होंने इन पे एक एहसान किया टॉप ऑर्डर में इनको भेज के. वो वहाँ पे 1-2 मैचों में कर गए. अब वो ऐसे 1-2 मैचों में परफॉर्मेंस कर गए, उसके बाद वो जो है ना पाकिस्तान के परमानेंट ओपनर बना दिए गए. उनके आगे दुनिया ही नजर आना खत्म हो गई. और हालात ये हैं कि they don't want to lead from the front at all. They just want to do what they think that we know. इसके आगे निकल के खेलते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो आउट हो जाते हैं. तो वो मैंने आपको कल बात क्या की थी कि कुछ प्लेयर्स हैं हमारे, जिनमें से रिजवान भी, आई फील के उनमें से ही, I'm really sorry but this is what the reality is, उनमें से ही होते जा रहे हैं कि भाई टूर्नामेंट खत्म हो, स्कोर कार्ड देखा जाए, अरे रिजवान ने तो 450 स्कोर कर दिए, और हाँ वो आउट नहीं हुए थे, उन्होंने ज्यादा ओवर्स खेले तो अब 450 स्कोर मैं क्या करूं ऐसे 450 स्कोर करके जिसकी वजह से आप मैच हार ही जा रहे हो. क्योंकि मैच तो आप हरवा रहे हैं. 36 बॉलों पे 37 करते हैं, आप सेंचुरी भी करते हैं तो पहला 50 आप 40 बॉलों पे करते हैं. उसके बाद आपको इतना क्रिटिसिज्म हुआ जब आपने 36 बॉल 37 किया, आप फिर नहीं सीखे, तो आज फिर आप जो है ना रना बॉल से भी नीचे खेल रहे थे, तो फिर आप बाकियों को आउट करा रहे हैं. आपके प्रेशर से यासिर खान आउट हो रहा है, उस्मान, आपके प्रेशर से उस्मान खान आउट हो रहा है, आपके प्रेशर से बाकियों के प्लेयर आउट हो रहे हैं. वो कामरान गुलाम भी सारी उसी पिचेस पे खेल रहा है, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है. यार हाउ कम? बिकॉज इंटेंट, इरादा शो कर रहे हैं. आपके कप्तान की वजह से तरफ से कोई इरादा शो नहीं हो रहा. और जब कप्तान ही लीड नहीं कर रहा फ्रंट से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बाकी के प्लेयर? और फिर इस तरह की इनिंग्स के बाद ड्रेसिंग रूम में बातें शुरू हो जाती हैं, मैनेजमेंट में बातें शुरू हो जाती हैं. प्लेयर्स आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, और प्लेयर्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो इसका मतलब है आपकी टीम एक पेज पे नहीं है. और आपकी अगर टीम एक पेज में नहीं तो रिजल्ट्स आपकी फेवर पे कैसे आ सकते थे? रिजल्ट्स वही हैं जो इन्होंने बोया है, जो जिस तरह की इन्होंने क्रिकेट खेली है, और जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक बॉटम पे खड़े हैं. तो रिजवान को ये चीज नजर नहीं आ रही कि इस साल मुल्तान सुल्तान्स के रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं ऑल ऑफ अ सडन, और वो उसी तरह खेलते जा रहे हैं अगेन एंड अगेन, मैच आफ्टर मैच. तो उनको खुद सीखने के लिए कुछ यानी कि मिल नहीं रहा. सीखने के लिए मैं वही बात है, सीखने के लिए वो जो उसको ये लगता हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जबकि मुझे यही नहीं लगता. मैनेजमेंट को नहीं नजर आ रहा. मैं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट को अगर नजर आ रहा होता, मैनेजमेंट, तो वो उसको अलाउ करते इस तरह खेलने का. नहीं, मैनेजमेंट रहमान साहब, ये वो सारे कोचेस भी मिल जाते हैं ना. तो मसले ये अपने कोचेस भी साथ लेके आते हैं अपने, कि इनके स्टाइल ऑफ प्ले को बैक किया जाए मीटिंग के अंदर, इस पे जो है ना हामी भरी जाए कि हाँ रिजवान एंड तक खेलेगा, बाकी उसके इर्द गिर्द सारे आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे. यही रोल रिजवान पाकिस्तान टीम के साथ करता रहा, और कोई मिडिल ऑर्डर इस वजह से बन नहीं सका, और मैचेस आप हारते गए. अब वो यही रोल जो है ना मुल्तान सुल्तान के लिए कर रहा है कि मैचेस को एक तो आउट करवा रहे हैं सबको, मिडिल ऑर्डर में आप देख लेंगे कोई स्कोर नहीं कर पाएगा, और फिर जो है ना आप बॉटम पे खड़े हैं. लेकिन लोगों की पोजीशन और रेपुटेशन एट स्टेक नहीं होती, क्योंकि आई मीन एक ऐसे प्लेयर हैं जो सीजन प्लेयर हो गए हैं, जिनको अब टीम से बाहर हो गए हैं, और फिर भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो रेपुटेशन एट स्टेक नहीं होती है आपकी. PSL तो एक मौका होता है ना, तो अगर आप उसमें भी वही कर रहे हो, then how do you expect to see anything do different? they really care about the reputation? अगर रेपुटेशन की केयर होती तो मुल्क के लिए इस तरह खेलते जो, और ये चीजें करते जो की हैं. आप कंपनीज के अंदर, PR कंपनीज के अंदर जो है आपके शेयर हैं, आप हेड हैं वहां के, तो आप ये चीजें थोड़ी कर रहे होते अगर आपको अपनी रेपुटेशन की परवाह होती.
All they need nowadays is, I think, players are, I'm not naming a single person, but players are just going after money nowadays. वो जो passion है मुल्क का, क्रिकेट का, वो खत्म हो गया है। और आसपास वो अपने इर्द गिर्द भी बाकी प्लेयर्स को भी देखते हैं तो सारे एक जैसे ही हैं। तो वो फिर ये होता है कि हाँ भाई वो भी तो यही कर रहा है, वो भी तो यही कर रहा है, ये भी यही कर रहा है, तो मैं भी यूं करूं। और ये लीडर है पाकिस्तान के, अभी वनडे के तो कप्तान है, T20 के भी कप्तान थे, पिछले 5 सालों से टीमें वगैरह बाबर के साथ मिलके ये लोग तो जब ये लोग इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं तो इमेजिन यंग जनरेशन किस तरह की निकलेगी। फिर शान मसूद तो इसी तरह की इनिंग खेलेगा ना, फिर सऊद शकील तो इसी तरह की इनिंग खेलेगा। वो कहेगा, वो कहते हैं, जब बात होती है वो कहते हैं वो रिजवान भी तो यूं खेल रहा है। दिस इज व्हाट द रीजन कि आपकी क्रिकेट नीचे जा रही है, क्योंकि आपके जो रोल मॉडल हैं वो सही रोल मॉडल ही नहीं है। विशियस साइकिल रिपीट करता जाएगा तो हम आगे से वो सही रोल मॉडल्स ही नहीं है। हाँ। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की बात करें तो उनके लिए ऑब्वियसली दिस वाज एन इम्पोर्टेंट विन इन देयर होम ग्राउंड। तो उनकी परफॉर्मेंस को आज आप कैसे हाउ वुड यू वर्ड इट? आई थिंक शाहीन वाज रियली गुड। शुरू में जो 2 ओवर उन्होंने किए हैं, he was top notch. He was bowling with pace. There was a bit not enough swing, inward जो in swing करते हैं, but he was hitting good areas. And he was constantly asking questions with the new ball. So it was really good to see him bowling with nice pace and rhythm. At the same time, आप करण को देखेंगे, I think it was a beautiful induction. He was really economical with his 4 overs. 6 की एवरेज थे उसको स्कोर हुए हैं। सो दे बोथ सेट द टोन अप फ्रंट। और उसके बाद बाकियों ने कैपिटलाइज किया। आई स्टिल बिलीव, देखिए ना, अब डैरिल मिचेल के जो ओवर हैं, ये पार्ट टाइम बॉलर है और 15वां ओवर करने आ रहा है और रिजवान फिर भी सिग्नल ले रहा है। हमें ये इंस्ट्रक्शन होती थी जब हम खेल रहे थे आज से 4 साल पहले तक की, कि पार्ट टाइम बॉलर आ गए तो आपने जाने नहीं देना, चाहे विकेटें गिर जाए 2, लेकिन ये ओवर जाने ना पाए। ओ यार, आप 15 ओवरों में खेल रहे हो, आपका अपना स्कोर 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट है, टीम का स्कोर हुआ नहीं हुआ, आप फिर डैरिल मिचेल को 15वें ओवर में इंटेंट ही शो नहीं कर रहे। सो ये माइंड बॉगलिंग चीजें हैं। अब इससे ज्यादा क्या बताएं हम आपको, क्या कहें, क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अब आई मीन लाहौर कलंदर्स जीत तो गया, लेकिन अगर हम उनकी बॉलिंग को देखें तो उनके स्पिनर्स ने आज काफी मार खाई है। 10-11 की इकोनॉमी थी। उनके फास्ट बॉलर्स जैसे आपने बोला, शाहीन शाह अफरीदी, टॉम करन, उन्होंने काफी बेहतर यानी कि बेहतर परफॉर्म किया स्पिनर से। ऑब्वियसली जब हम कंपेयर करें तो इवन वो जीत गए हैं, लेकिन व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कैन वर्क ऑन नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर मैचेस इन दैट डिपार्टमेंट? आई थिंक दे आर स्टिल वन बॉलर शॉट। डैरिल मिचेल को 4 ओवर नहीं बनते हैं। कोई टीम अच्छे अप्रोच के साथ आएगी, अटैक करेगी, आप चोक कर जाएंगे। तो बाकी बहुत सारी चीजें इस टीम में ठीक नजर आई हैं। जहांदाद हैं तो उनको क्यों नहीं खिलाया? I don't know, but whatever they want to do, they want to somehow induct up specialist bowler. I'm a strong believer, ठीक है, कि आपके पास चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, चाहे वनडे है, चाहे आपके पास ये T20 है, आपकी बॉलिंग पूरी होनी चाहिए, बॉलिंग ऑप्शंस पूरे होने चाहिए। आपके पास कोई लूप होल नहीं होना चाहिए कि फिर टीम प्लान करती है, अच्छा ये 3 ओवर है निकल जाएंगे, इसके 4 ओवर है, इसको हमने जो है ना 70 कर देना, 4 ओवरों में 60 कर देना। तो वो इस तरह आपसे एक स्टेप अहेड चले जाते हैं। और कप्तान वही जो अक्सर ये करते हैं अपनी बैटिंग लंबी करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये मैच जबरदस्त खेला है लाहौर कलंदर ने। देयर आर फ्यू थिंग्स, बैटिंग के अंदर भी कुछ प्लेयर्स हैं, बट जब जीत जाए तो लेट गो करते हैं इंसान को, बैटिंग भी परफॉर्मेंस हो जाती है, बॉलिंग भी, लेकिन अपने रिसोर्सेज सही कॉम्बिनेशन अंदर उतारना। और मेरा ख्याल है कि डैरिल मिचेल जो हैं, उनके जो 4 ओवर है वो नहीं होने चाहिए, एक उसकी जगह स्पेशलिस्ट बॉलर होना चाहिए। वैसे बाय द वे, ये जो आपने 5th स्पेशलिस्ट बॉलर की बात की है, दैट्स आल्सो अ मैसेज फॉर बाबर आजम एंड पेशावर ज़ल्मी जो कल का ही मैच खेलेंगे, उसकी तरफ भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। कल का मैच इट इज ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और ज़ल्मी दोनों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मैच है। ऑफ कोर्स एज वी नो दोनों जीतना चाहेंगे। तो कल के मैच के बारे में आप क्या कहेंगे फॉर बोथ दीज टीम्स? आई थिंक जो आखिरी मैच देखा है दोनों टीमों का, तो दोनों टीमों के अंदर मिस्टेक्स थी। जो दोनों टीमों की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, उसमें से आप देखें कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो फॉरनर्स हैं टॉप ऑर्डर, दे आर नॉट वर्किंग। बॉलिंग के अंदर उन्होंने कमबैक किया, आमिर का एक्सपीरियंस मौजूद है, इब्रार उसके अंदर मौजूद है। तो जो और फिर कराची की बड़ी गलतियां थी उनको जितवाने के लिए, तो इतनी कोई जबरदस्त क्रिकेट नहीं खेली उनके हिसाब से। अगर देखा जाए तो पेशावर ने ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली है। वुड बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, अली रजा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो ये विकेट टेकर्स जो है ना, इनके पास इस तरह के मौजूद हैं जो क्लिक कर रहे हैं राइट टाइम पे। हमने देखा कि चीजें बेहतर होती हुई नजर आई। बाबर आजम ने भी 50 स्कोर किया पिछले मैच में, तो एक अच्छा साइन है, लीग के लिए अच्छा साइन है, उनकी टीम के लिए अच्छा साइन है।
सो आई थिंक पेशावर का पलड़ा थोड़ा सा भी बेटर। तब हम अपने इन्फ्लुएंसर्स को, एक्चुअली वन इन्फ्लुएंसर वन एथलीट को यहाँ एंगेज करते हैं। हमें पता है कि अंजल एक बहुत ही एविड क्रिकेट वॉचर और क्रिकेट फैन भी है, तो अंजल हमें थोड़ा सा बताएं, आज फाइनली बैटिंग पैराडाइज पे हमने रिलेटिवली एक हायर स्कोर देखा, हायर टोटल देखा, तो उस लिहाज से आपने कैसे आज मैच एंजॉय किया था? क्योंकि आपने बताया था कि जब पिछले 2 मैचेस में गए थे तो तब ऑब्वियसली लो स्कोर था, हाँ लो टोटल था। Honestly, it's good कि T20 मैच के अंदर बैटिंग पैराडाइज जैसी विकेट्स बन रही है, because it's good for the game, it's good for the spectators and fairly like fair for the bowlers also. Usually क्या होता है, या तो आप बिल्कुल अगर आप ग्रीन पिचेस बना दें तो कहीं ना कहीं गेम इतना फेयर नहीं होता। ये ऐसा पिच था जहाँ पे 180 तक बना, और आई थिंक 180 वहां है जहाँ पे बॉलर्स को भी सपोर्ट मिल रही थी। पीसॉस शाहीन आफरीदी bowling really well in the first. Did you like his bowling style? I loved today? it. I think there was one ball he bowled to, I guess, I think Shea Hope, where he just put in like in swinger. पता नहीं कैसे बचा. It was a really good ball. However, I believe कि यहाँ पे हमने ये देखा कि जिसके पास पेस ज्यादा थी तो उस बॉलर काफी एक्सपेंसिव भी रहा, जैसे हारिस राउफ। even though at least like we see that अगर उनको कोई बॉलिंग पिच मिल जाए तो ही इज रियली गुड। इन तरह की पिचेस में जहाँ पे वो अपनी पेस लगा रहे थे उन्हें मार भी पड़ी। बट आई बिलीव फॉर द गेम इट्स गुड। बहुत हमने लो स्कोरिंग मैचेस देख लिए। आई थिंक आईपीएल में हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, बीपीएल सीपीएल हर जगह होते हैं। आई थिंक पीएसएल आल्सो डिजर्व्स 200 प्लस वाले मैचेस। इवन दो 180 के अंदर भी मैं समझता हूँ कि मतलब ये अच्छी पिच थी, मुल्तान और इस पे स्कोर कर सकता था। आई थिंक एनी टीम could score more, इसलिए इसको बैटिंग पैराडाइज कहते हैं। अच्छा, वैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब लोग T20 या क्रिकेट देखने आते हैं, फैंस छक्के और चौके देखना चाहते हैं। that's what excites them, that's what brings them towards the game. आप बताएं, आपको आज का ओवरऑल मैच कैसा लगा था? इधर आपने बैठ के अहमद शहजाद और हम सबके साथ देखा। एक्चुअली मैंने पहली बार मैच को इतना क्रिटिकली देखा है, तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एंड मेरे लिए एक अच्छी बात ये थी कि आज क्राउड नजर आ रहा है। पहले क्राउड नहीं था, आई थिंक शाहीन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। पीपल, ही हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। बिल्कुल, रिजवान आल्सो हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। बट बात ये कि उनको देख के लोग आ रहे हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट, इजंट इट? तो क्रिकेट को जब लोग देखने आते हैं, इट्स मोर फन वाचिंग। हाँ, जब एक एनवायरनमेंट होता है, फुल ग्राउंड भरा होता है, तो उसकी कोई फील ही बिल्कुल डिफरेंट, वाइब बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस, लाइक हम जितना भी अपने प्लेयर्स को लेके जितना भी क्रिटिसाइज कर लें, मैं समझता हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स कहीं ना कहीं बिकॉज उनको वो स्पॉटलाइट मिलती है तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी उस लेवल से ही होता है। बुरा भी मुझे लगता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे है वो पाकिस्तान का ही प्रोडक्ट। ठीक है, आई लव माय क्रिकेटर्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। वो बुरा खेलें जैसा खेलें, दिल बहुत दुखता है। छोटे, आई डोंट थिंक आयरलैंड से हारना चाहिए था या यूएसए से हारना चाहिए था, बट स्टिल लेकिन होता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आई फील यही वो प्लेयर्स हैं जिनको देख के इस मुल्क में क्रिकेट वापस रिवाइव हुई थी। अगर बाबर आजम, रिजवान जैसे प्लेयर्स ना होते तो आई डोंट थिंक कि मुझे जैसा क्रिकेट लवर जिसने बीच में they also made you fall back in love with the sport. Like I remember 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से हमारी गलियों में, मोहल्लों में क्रिकेट वापस आई थी। पीएसएल से मोहल्लों में क्रिकेट वापस आई थी। तो we have to give credit to them. PSL was a great initiative. That they like carried on the legacy which was not there. I think we have to give a lot of credit to Misbah Yunus Khan also, who brought dignity back to the cricket after like you said, the 2017 champions. Yeah, exactly. Like 2010 का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से मुझे ऐसा क्रिकेट फैन, हम अपने स्कूल में लड़के थे, we were not really happy with like we weren't allowed to have matches in Pakistan, and it was so nice. ठीक है, हमने बेशक हमने चैंपियंस ट्रॉफी में इस साल परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एशिया कप वापस आया पाकिस्तान में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट किया इतने अरसे बाद। सो कहीं ना कहीं है, लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू से, लाइक कहीं ना कहीं like रमीज राजा को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो ड्रॉप इन पिचेस का नाम लेके हमेशा, बट आई फील कि उनकी कुछ ना कुछ सर्विसेज तो हैं। and he's a really good commentator. He bought like I think उनके टेन्योर में जो आईसीसी हमने ट्रॉफीज खेली हैं, जितने भी कप्स खेले, कहीं ना कहीं we ended up in the top 4, मतलब कहीं ना कहीं we were better. वो खुद भी क्रिकेटर थे जब वर्ल्ड कप हम जीते थे 1992 Exactly. So that things matter. तो हमें लगता है कि I know that हमारी परफॉर्मेंस has not been very good, but still I believe कि इन प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत है। आई वाज देयर इन द मैच बिटवीन पेशावर वर्सेस लाहौर। लाहौर का होम ग्राउंड, 27,000 पीपल, और बाबर किनारे लग रहे थे। वही ना, आप सोचेंगे कि लोग क्राउड इसलिए आया था क्योंकि लाहौर कलंदर्स लाहौर में मैच खेल रहा था, पर एक्चुअली जब भी बाबर आजम उधर होता है तो क्राउड आया होता है, पूरा स्टेडियम फुल हुआ होता है because it has such so many fans। अभी हम डिस्कस करते हैं कितनी लो स्टैंड क्रिकेट है। अभी ये एक लो स्टैंड की क्रिकेट का एक छोटा मैच हम पसंद कर रहे हैं इसको, जहाँ पे मेरे साथ बैठने वाला मुझसे लड़ रहा है कि तुम लाहौर को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, और साथ वाला कह रहा है कि नहीं बाबर बेशक मैं लाहौर
रहा हूँ नहीं। लेकिन मैं बाबर की टीम को सपोर्ट करूंगा शाहीन को जब कट पे हारिस हाँ। ने 6 मारा था हाँ। तो पीपल वर स्क्रीमिंग कि वाओ हारिस व्हाट अ शॉट सो that's what I'm saying that despite all the fact people in Pakistan love cricket Yeah, they love and it. by the cricket at this point is at the lowest फिर भी ये टर्न ओवर है ग्राउंड्स हाँ। में सोचें अगर हम इससे ऊपर जाएं तो क्या रिस्पॉन्स होगा so that is I believe that cricket is the number one sport in the hearts of people right now हाँ। and the day it gets on the top of everything by the performance I don't think that anyone in the world can beat Team Pakistan. Of course, यही Yeah. तो होता है कि imagine अगर हमारे like once we do start performing again, तो because we're still so attached to it, we still have so much love, इतना जज्बा, इतना passion है, despite हमारी जो भी performances हैं, जिधर भी हम हो, तो imagine when we do start performing again, और जब पाकिस्तान come back करेगा, Let's I wish think for that's that. the day, I think that's the day जिसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा है. अच्छा लाइबा, just lastly tell me कि आप अब आगे जाके बाकी मैचेस PSL के फॉलो करेंगी या आप जनरली क्रिकेट आपने कहा था आप थोड़ी बहुत देखती हैं तो आगे जाके how will you keep watching cricket? I think I'm gonna watch all the matches now. अभी मेरा वो एक curiosity develop हो गई है कि आगे क्या होगा. But like you said earlier, हमारे लिए hope cricket ही है क्योंकि सबसे ऊपर यही जा रही है. This is what that's bringing promotion for the country and promoting it abroad as well. तो उसके लिए मेन जो हमारे प्लेयर्स हैं तो जूनियर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए सबसे पहले तो and then they need to get out of the politics and just play with the passion of the sport. Leave politics out of entirely. sport. That's for any sport in Pakistan. And the way we were Or all over the discussing world, कि हमें as athletes from other sports हमें promotions पे काम करना पड़ता है on posting on Instagram. But that's not what marketing. we're supposed to do. We're supposed to just Focus play. on our But game, that's the only way we get sponsors. So that's not fair, Unfortunate. you know. That is very unfortunate. अच्छा कल के मैच में आप किसको सपोर्ट करेंगी? पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स? बाबर आजम. अभी हमने बात की थी and then of course Saud Shakil is the captain for the Gladiators. तो I किसको think support करेंगी? I'm supporting both the teams, but I would support the one that plays better. So maybe so the any best team. one wins. May the best one May win. the Very best one diplomatic win. answer right there. अच्छा Anza, you tell me. Both the teams have won their previous Yeah. matches. कल कौन जीतेगा आपको लगता है? जीतेगा- किसको सपोर्ट कर रहे हैं? Support Peshawar Zalmi all the way. Because of Babar Azam. Are you a I Babar am a Azam fan? big Babar Azam fan. Ah, I knew he would okay. say that. By मुझे भी feeling आ रही है कि ये यही कहेंगे. Look, तो चलें. it's gonna be Amir versus Babar tomorrow. Amir versus Babar again. Again. One more time देखते हैं कि कल के Yeah. मैच में क्या होता है. हमने पहले मैच में जब इनका आपस में मुकाबला हुआ था तो हमने देखा था कि मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम की विकेट कैसी ली थी और फिर उसके बाद उनका फेस ऑफ भी कैसा हुआ था. So let's see अगर कल भी वही कहानी होती है or will बाबर आजम change the narrative of that story around and maybe score big. Who knows? It's batting paradise. But thank you so much guys for being here with us. We really enjoyed talking with you, your company and all the amazing things that you had to share with us. That's all we have for you with this show. I hope you guys really enjoyed it. कल हम आएंगे वापस इसी टाइम जो हम हर रोज आते हैं जिस टाइम पे which is 6:40 PM live. कल का मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान. So make sure you do tune into our show before that match takes place. But that's all for today. Goodbye and thank you for being with us. See you all tomorrow.